Dear students, today I am starting a new series of video lectures regarding the CSS exam. Today is my first lecture on what is CSS exam, everything you need to know, lecture number 1. In second lecture, I will tell you how to make preparations for CSS exam. But today you have to know about the CSS exam. So, salutations. Are you aspiring to become a well respected and high ranking officer? Are you about to take CSS exam for the first time? You are in luck. Today we are going to explain what is the CSS test and what are the tests that are required to clear for the selection process. This will be a greatly detailed lecture that will help you to during the exams. Let's begin with the explanation. Firstly, we have the introduction of CSS. To start off, you must know about the CSS exam. It stands for Central Superior Service Exam, which is conducted by the Federal Public Service Commission, FPSC. The exam is held every year in the months of February and March. Criteria for the CSS. uh, the exam can only be taken by the who candidate who is a citizen of Pakistan. The criteria for such an exam is that you should possess a graduate level degree in second class at least, or equivalent 70% marks. If you have done BA, or you are possessing of 14 years of the education, so you must have 70% marks or above it. The candidate who doesn't possess such a degree in the second division can only attempt the exam only if they have acquired a high division during their master's degree. Suppose if you are graduate, you did BA, but you are not your percentage is not 70%, then you have to go to masters and acquire a first class, at least first class in masters, then you will be the eligible for CSS exam. Age limit. The age limit during the exam is from 21st to 21 to 30, which can go up to 32 years. uh, the 2 years relaxation is for the person who is in government services and already served 2 years. Nationality, of course, citizen of Pakistan and permanent resident of Jammu and Kashmir. Difficulty, if you suppose or if you are thinking that CSS is a like a walk in the park, then you are uh, uh, in a fool's paradigm. To be completely honest, the CSS exam is not a walk in the park. The person who doesn't possess the level of dedication that is required for this exam can't pass it. To emphasize how difficult this exam is, I present you with a fact. In 218, around 12,000 people are students attempted the CSS examination, out of which only 569 candidates cleared the examination. It means 3% passing rate, just 3% uh, who applied for the examination. Only 3% candidates passed that exam of 2018. Similarly, the passing ratio for CSS exam in the recent year of 2019 is only 2.56%. Uh, uh, if we compare or distinguish make distinguish between 218
and 2018 and 2019 examinations, the ratio unfortunately is decreased. In 2018, the passing ratio was 3%, but in 2019, that ratio decreases and remains at 2.56%. So, if this fact doesn't tell you the level of challenging that the CSS present, I don't think nothing will. The way to succeed in this exam is to have a rigid schedule from which you can't deviate and a level of focus that can't be dispersed easily. Dispersed easily, sorry. Jobs for CSS candidate. If you have passed the examination and after that or before going to examination, you have to fill in the form and you have to mention the priorities of the departments you are going to sit in the examination. You have to prioritize your priorities uh, like this. The candidates who pass CSS examination are given job opportunities in the following fields: career in the Department of Police Services of Pakistan के जो प्रोविंशनल प्रोविंस में या पाकिस्तान लेवल पे टॉप करते हैं, उनका जो पहली चॉइस होती है वो पुलिस होती है, पुलिस सर्विसेज। वो डायरेक्ट जो है वो पुलिस में 17 ग्रेड में लगते हैं। दूसरी चॉइस हर किसी स्टूडेंट की होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप। तीसरी फॉरेन सर्विसेज ग्रुप, जिसमें आप डिप्लोमेट और एम्बेसडर्स बनते हैं। फिर इनकम टैक्स ग्रुप, कस्टम एंड एक्साइज ग्रुप, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल ग्रुप, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रुप एंड द डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ग्रुप. So these are the 10 departments you have to choose these. You have to write in the form these 10 departments. तो ये 10 डिपार्टमेंट हैं जिसके लिए आप CSS एग्जाम जो है वो देते हैं। तो वो फिर आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपकी जो है वो जो एग्जाम में जितनी भी परसेंटेज आती है उस हिसाब से जो है आपको वो डिपार्टमेंट मिलता है। तो ये 10 डिपार्टमेंट हैं CSS के लिए। द रिवॉर्ड फॉर द पासिंग द एग्जाम। तो जब आप जो है वो एग्जाम पास करते हैं तो बेसिकली 17 ग्रेड में डायरेक्ट लगते हैं, और जो आपका रिटायरमेंट होती है वो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे होती है 22वें ग्रेड में। तो आप जब 22वें ग्रेड में जाते हैं तो आप चीफ सेक्रेटरी, 4 सूबे हैं तो किसी भी सूबे के जो है वो चीफ सेक्रेटरी जो है बन के जो है वो रिटायर करते हैं। तो 17 ग्रेड में लगते हैं और 22 ग्रेड में जो है वो रिटायर करते हैं। और जो बेसिक पे होती है 17 में 40,000 होती है बेसिक पे, और बेसिक पे होती है 22वें ग्रेड की 1.5 लाख बेसिक पे होती है और 17 ग्रेड की 14,000। लेकिन उसके बाद जो अलाउंसेस होते हैं तो वो बहुत अच्छी हैंडसम जो है वो सैलरी जो है आपकी बन जाती है। तो सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं CSS ऑफिसर की। जो ब्यूरोक्रेट होते हैं लाखों में होते हैं, लेकिन ये जो बेसिक पे है वो 22वें ग्रेड की 1.5 लाख होती है और 17 ग्रेड की 40,000 होती है। सेक्शन ऑफ द CSS एग्जाम। तो CSS एग्जाम में बेसिकली 4 टेस्ट जो हैं वो आपको पास करने होते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो रिटन टेस्ट होता है। सेकंड जो है, जब आप रिटन टेस्ट पास करते हैं उसके बाद आपकी मेडिकल टेस्ट होती है, और उसके बाद आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है, और लास्ट में जो होता है वो वाइवा। वाइवा जो इंटरव्यू जो होता है आपका, उसको वाइवा कहते हैं। तो रिटन टेस्ट जो होता है वो 1200 का होता है, और बाकी जो है मेडिकल, साइकोलॉजिकल टेस्ट और वाइवा ये मिला के जो है वो 300
मार्क्स के होते हैं। टोटल जो है CSS 1500 मार्क्स का होता है। तो नीचे लिखा हुआ है ऑल दीज सेक्शंस कैरी अ ग्रेट सिग्निफिकेंस अपॉन व्हिच योर एबिलिटी लेवल इज डिटरमाइंड। हर एक हर each and every test requires different ability, और हर किसी की अपनी अपनी एक एबिलिटी लेवल होती है। तो जैसे ही आप पास करते जाते हैं टेस्ट, तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। The scores for the written test are 1200, which consists of 6 compulsory tests and 6 optional tests. Means 600 6 papers and compulsory papers, and of 600 of 6 papers of optional tests. There is also psychology test and the viva, so total marks become 1500। तो जैसे मैंने पहले बताया कि रिटन टेस्ट जो होता है वो 1200 का होता है, और जिसमें 600 कंपलसरी जो है वो मार्क्स, कंपलसरी पेपर्स के मार्क्स होते हैं, और 600 जो है वो ऑप्शनल पेपर के जो है वो मार्क्स होते हैं। तो टोटल मिला के 1200 होते हैं। और बाकी जो 3 टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, वाइवा और मेडिकल, उनके जो हैं वो 300 जो है 300 जो हैं उनके मार्क्स होते हैं। तो टोटल मिला के ये CSS जो एग्जाम होता है वो 1500 का होता है। वी विल एक्सप्लेन ईच सेक्शन इंडिविजुअली। तो अभी जो है हम डिटेल में जो है हम आपको सेक्शंस के बारे में बताते हैं। The number one is written test. As explained above, there are a total of 12 subjects. These subjects will consist of 6 subjects or papers of compulsory and 6 optional subjects. Both the compulsory and optional subjects contains a total of 600 marks each. The total amount of time given for each paper will be 3 hours. Each exam will consist of 2 parts which are objective and subjective. तो टोटल जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, जिसमें 2 पोर्शन होते हैं या 2 जो है पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो MCQs का होता है, और दूसरा पार्ट जो है वो सब्जेक्टिव होता है। The objective part will be taken on a different paper because of the reason that objective part will be taken after 30 minutes. तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव MCQs पार्ट होता है वो पहले आपको जो है सेपरेट शीट दी जाती है, और वो तकरीबन जो है वो 30 जो है वो MCQs होते हैं 30 मार्क्स के। तो वो आपको फिल करके जो है वो आधे घंटे के बाद जो है वो वापस करना होता है। उसके बाद जो है आप सब्जेक्टिव पार्ट पे जो है वो जो आंसर शीट दी जाती है उसी पे आप वो करते हैं बकाया 2.5 घंटों में। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, द क्वालिफाइंग मार्क्स आर 40%। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं वो 40 मार्क्स पे जो है आउट ऑफ 100, 100 मार्क्स में से अगर 40 आप उठाते हैं तो वो पेपर पास हो जाता है। तो कंपल्सरी कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? इंग्लिश ऐसे होता है 100 मार्क्स का, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर होता है 100 मार्क्स का, जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स का, करंट अफेयर्स 100 मार्क्स का, पाक अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स 100 मार्क्स का, इस्लामिक स्टडीज आर कंप्लीट सब्जेक्ट्स फॉर मेजर रिलीजन्स, मतलब के इस्लामिक स्टडीज जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं तो वो उनके लिए भी जो है सिविक्स है या कुछ जो और जो सब्जेक्ट्स हैं वो है, लेकिन वो 100 मार्क्स के होते हैं। तो ईच सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स ईच एंड टोटल मार्क्स विल बी 600। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी वही रेशो होती है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ये होता है कि कुछ जो हैं वो 200 के होते हैं, जैसे IR जो है वो 200 का है, और लैंग्वेजेस में कुछ जो है वो 200 के होते हैं। तो इस तरह जो है आप जो है चूज करना पड़ते हैं सब्जेक्ट 600 के। In the optional subjects, there are different groups from which we have to select our optional subjects. The marks for the subjects are different in different groups.
There are a total of 7 groups. You will have to select the subjects according to your level of ability. के 7 ग्रुप्स हैं, उनमें से जो है आपको 600 के जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी से चूज करने होते हैं, वो करते हैं 600 के. द एग्जाम इज अ वेरी डिफिकल्ट, so to avoid any sort of hurdle just select the best optional subjects according to your level of comfort. तो कह रहा है कि एग्जाम जो है CSS वो डिफिकल्ट है, तो आपको जो है इसलिए ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं कि आप अपनी लेवल के हिसाब से, जैसे आपने मास्टर या BA IR में किया है तो ऑफ कोर्स आप सबसे पहले जो आपकी चॉइस होगी वो IR होगी. उसके बाद जिस जिस में आप कंफर्ट फील करेंगे, या कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, तो वो आपको पता लग जाता है कि कौन से जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो वो आप चूज कर लेते हैं. मैनी पीपल टेंड टू चूज द सब्जेक्ट दैट कैन लुक गुड इन अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट द बेस्ट ऑप्शन इज टू सेलेक्ट द सब्जेक्टिव दैट यू हैव टू मोस्ट इंटरेस्ट इन. बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इजी होते हैं, लेकिन पेपर आपको देने होते हैं, नंबर्स आपके आएंगे. तो आपका जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपका बैकग्राउंड थोड़ा टच करता है उन सब्जेक्ट्स को, जो आपके पास नॉलेज है उनके सब्जेक्ट्स के हवाले से, तो आप जो है वो ऑप्ट करें. दिस इज द की फैक्टर इन बीइंग सक्सेसफुल इन CSS एग्जाम. तो ये जो चूज करने का तरीकाकार या मेथोडोलॉजी होता है, ये एक जो है वो CSS एग्जाम में जो है आपको स्कोर दिलाती है और आप सक्सेसफुल रहते हैं. आफ्टर द कैंडिडेट has passed the written test only, then they will be allowed to take the other sections of the exams. तो अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद जो है बाकी जो 3 टेस्ट हैं तो वो गाहे बगाहे जो है आप आगे चलते जाते हैं. दूसरा है मेडिकल टेस्ट. तो मेडिकल टेस्ट में as mentioned above, the candidates who have successfully completed the written test are allowed to go further. The purpose of this section is to check for any medical issue that may arise. तो आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है. बेसिकली मेडिकल टेस्ट का मकसद ये होता है कि आप अगर ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे पाकिस्तान की और ब्यूरोक्रेट बनेंगे और गजेटेड ऑफिसर बनेंगे, तो आपकी जो फिजिकल टेस्ट या फिजिक है, तो वो फिजिक जो है कहीं आप जो है डिसेबल तो नहीं है. अगर आप डिसेबल हैं तो आपको ये 4 जो हैं वो जो डिपार्टमेंट जो है वो चूज करने हैं बिफोर टेकिंग एग्जाम. पाकिस्तान ऑडिट एंड एन अकाउंट, कॉमर्स एंड ट्रेड, पोस्टल सर्विसेज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज. अगर आप फॉर सपोज एज डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं और डिसेबल हैं, तो आपको फॉर्म में जो है सिर्फ ये 4 जो डिपार्टमेंट है उनको जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, और इनमें से चारों में से जो है वो आपकी जो है वो रिक्रूटमेंट होगी. तो before any setback, it is recommended you go through a body examination by government medical officer. तो मेडिकल टेस्ट ये है कि आपका जो बॉडी है उसकी कम्प्लीटली जो है वो चेकअप होता है कि कहीं आप में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है. तो इसी को जो है वो मेडिकल टेस्ट कहा जाता है. उसके बाद मेडिकल टेस्ट के बाद फिर 100 मार्क्स का आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है. साइकोलॉजिकल टेस्ट मीन्स वो जैसे मेडिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट था, साइकोलॉजी टेस्ट जो है वो मेंटल टेस्ट होता है. तो द मेन पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई द मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट. The test is designed to determine whether or not the aspirant can think on their feet. They are required to find the cynical answers for the question. The psychology test consists of 2 major parts. और जो साइकोलॉजी टेस्ट होती है उसमें उसके 2 टेस्ट होते हैं. एक रिटन टास्क होते हैं और दूसरा जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज होते हैं. रिटन टास्क ऐसे होते हैं कि आपको कोई टॉपिक दे दिया, आप उस पर लिखें, या कोई ऐसी चीज दे देते हैं जिसको पे आपको लिखना पड़ता है. और दूसरा होता है ग्रुप एक्टिविटीज, कि 4 या 5 स्टूडेंट को बिठा के कोई टॉपिक देता है,
एग्जामिनर, और वो 1 बाय 1 जो है वो जो है वो ग्रुप डिस्कशन होती है। ग्रुप डिस्कशन भी मल्टीपल डिस्कशन होती है। नंबर 1, आप इंडिविजुअली उस पे बात करते हैं। नंबर सेकेंडली, आप जो है वो या उसको सपोर्ट करें उस टॉपिक को, या उसको अपोज करें, लेकिन आपका आर्गुमेंट जो है वो फर्म हो, उसमें कोई लसानियत ना हो, कोई रिलीजियस जो है वो हेटेड ना हो। आप जो हैं वो पॉजिटिव, आप बेसिकली वो वो चेक करते हैं मेंटल लेवल के आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, आपका आर्गुमेंट जो है कितना पॉजिटिव है। इवन आप उसके अगेंस्ट हैं उस टॉपिक के, लेकिन आपका आर्गुमेंट जो है वो पॉजिटिवली जो है आप पुट अप करते हैं, तो ये चेक करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में। तो दो तरीके की टेस्ट होती है साइकोलॉजिकल, एक रिटन फॉर्म में होती है, हर कोई स्टूडेंट जो है अलग अलग से उसको टास्क दिया जाता है, वो उसी पे लिखता है। दूसरा ग्रुप डिस्कशन, एक इंडिविजुअली डिस्कशन होती है, और दूसरा जो है वो ग्रुप में डिस्कशन। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव your views upon certain topics, pictures or scenarios, so this will determine the level of your mentality. The candidates should write carefully because trained psychologists will analyze each and every part of your point of view. The group activities are designed in such a way that they can analyze how well you can perform if placed in group and how well you are manage the problem as a group member. तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसको मेंटल टेस्ट कहा जाता है। लास्ट में अगर ये मेडिकल भी आपका क्वालिफाई हो जाता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी आप क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद जो है जो लास्ट जो आपकी जो सिटिंग होती है वो वाइवा में होती है। वाइवा क्या है? वाइवा बेसिकली आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, 4 से 5 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। तो वो आपसे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, there are total of 300 marks for the psychological and viva section of the exam. So the viva section is just as important as the psychological section. There are a number of factors that are taken into consideration while taking the viva, such as mind, intelligence, leadership qualities, extracurriculum and co-curriculum activities, and knowledge. तो ये जो 5 चीजें हैं ये वाइवा में चेक की जाती हैं, और ये वाइवा इतना तो इम्पोर्टेंट होता है, इस बेस पे जो है आपको डिपार्टमेंट मिलता है। तो वाइवा में देखते हैं कि अगर स्टूडेंट का स्कोर अच्छा है या कम है, लेकिन जो वाइवा में जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बताते हैं कि ये पुलिस ग्रुप के लिए जो है वो फिट है, ये जो है वो फॉरेन सर्विस के लिए फिट है, इसकी मेंटल लेवल जो है वो हिसाब किताब में अच्छी है। तो उस हिसाब से जो है ये 5 चीज़ें, माइंड, इंटेलिजेंस, लीडरशिप क्वालिटीज, एक्स्ट्रा करिकुलम एंड को क्यूरिकुलम एक्टिविटीज एंड नॉलेज, ये 5 चीज़ें जो हैं आपको वाइवा में जो है वो चेक की जाती हैं। दे विल डिटरमाइन वेदर आर नॉट द पर्सन विल बी सूटेड फॉर द पोजीशन, and there will be a variety of questions that will be asked during the Viva section. So be as prepared as you can. By covering all of the above mentioned sections, the candidate can easily prepare themselves for the CSS exam. These are the CSS test sections. Hopefully this provide to be a helpful. तो ये सारा कुछ जो है वो CSS एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये था, आप इसको ऐसे लें कि इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस, कि सीएसएस होता क्या है। बिगनर्स जो होते हैं बेसिकली उनको नहीं पता होता, तो ये उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सीएसएस एनालिटिकल एग्जाम होता है, तो उसकी भी कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स होती हैं, और कौन सा जो है आपको जो है वो मटेरियल जो है वो पढ़ना पड़ेगा, कितने टाइम पे पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, वो आपको मैं जो मेरा लेक्चर नंबर 2 होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा
कि आप कैसे CSS की जो है वो प्लानिंग या प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो है इस लेक्चर के मैं लेक्चर को मैं एंड करता हूँ।